بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کربلا کے شیر خوار اصغر کی شہادت کا واقعہ۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام عرص مقام خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کی رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کیا، یا حسین، اون و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہوئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں کی۔ اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کہ اپنے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا، اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک جس غم گساری و فداکاری اور جس ثابت قدموں سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہے گی۔ حضرت زینب ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حضرت سحر بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، اور پھر اون و محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت ہی کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا کہ میرے لال کی آنکھیں پترا گئی ہے، من کا ڈھل چکا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ ممتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ، اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی و بے کسی دکھاؤ، اور کہو کہ اے ظالموں، اگر قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے کہ اگر امر شہید نہیں تو نہ صحیح، مگر اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، سحر بانو، یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جن ظالموں نے اون و محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس و قاسم پر ترس نہ آیا، اور جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما، جبکہ فاطمہ کے لال نے شیر بانو کی گود سے اپنی لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ شیر بانو نے پھر عرض کیا، حسین، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھولا کملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو، اور امر سید سے کہنا کہ یہ بچہ تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو،
और फिर मेरे बच्चे को उनके सामने कर देना। मुझे उम्मीद है कि मेरे असगर को तड़पता देखकर किसी को ज़रूर तरस आ जाएगा। शहजादाए दो आलम ने शीर ख्वार असगर को झोली में उठाया, दामन में छुपाया और सीने से लगाकर लश्कर-ए यजीद की तरफ कदम बढ़ाया। हजरत सहर बानो ने सैयदा ज़ैनब से कहा, बहन दुआ कीजिए कि अमर सैद को मेरे लाल की बेकसी व मासूमियत पर रहम आ जाए। सैयदा के लाल रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने बच्चे को दामन में छुपाकर अमर सैद के सामने खड़े हो गए। अमर सैद ने हजरत इमाम हुसैन को दामन में कोई चीज़ छुपाकर आते देखा तो साथियों से कहा कि मालूम होता है कि हुसैन इब्ने अली घबरा गया है और सुलह के लिए कुरान उठा लाया है, और देखो अगर हुसैन यजीद की बेअत पर सुलह करे तो उसका खैर मकदम करना, और अगर यजीद की बेअत किए बगैर सुलह करनी चाहे तो फिर कुरान का भी लिहाज ना रखना और तीरों से कुरान की भी फाड़ देना। अमर सैद ने इमाम अली मकाम को सामने खड़े देखा तो कहा, हुसैन क्यों आए हों? नूरे निगाहे अली ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं खुद नहीं आया, माँ की ममता ने तेरे पास भेजा है, और अगर मैंने आना होता तो ओन व मोहम्मद की कुर्बानी से पहले आता, कासिम व अब्बास की जानिसारी से कबल आता, और अगर मैंने आना होता तो अली अकबर की शहादत से पहले आता, और जब मैं उस वक्त नहीं आया तो समझो कि हुसैन अब भी अपनी मर्जी से नहीं आया, और आइंदा अगर और भी कई दिन तक पानी ना मिले और तुम्हारी तरफ से और भी मसायब के तूफ़ान उठे, और अगर करबला की इस तपती हुई रेत की चिंगारियाँ मेरे जिस्म को झुलसा भी दे तो हुसैन फिर भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, और मैं अब भी अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि मैं अपने दामन में जिस नन्हे से बच्चे को लेकर आया हूँ, इसकी माँ की दर्द भरी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। अमर सैद देख, अहले बेत के इस सीर ख्वार बच्चे को देख, करबला के इस मासूम मेहमान को देख, और शेर बानों के इस लाल को देख जो शिद्दत प्यास से दम तोड़ रहा है, जिसकी आंखें पथरा गई है और जिसकी ज़बान मुंह से बाहर आ गई है। यह बेगुनाह है, यह बच्चा है और सीर ख्वार है, और अभी यह यजीद की बेअत और इब्ने जियाद की बेअत को नहीं समझता, और अभी इसे किसी की बगावत का कोई पता नहीं है, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए मुझे नहीं मगर मेरे इस असगर के हलक में ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 कतरे ही पानी के डाल दे। शहर बानों के इस सीर ख्वार को पानी की 2 बूंदें दे दो। नहीं नहीं, मेरे असगर को नहीं, शेर बानों के बच्चे को नहीं, अपने नबी के नवासे को पानी दे दो। तारीख तेरी इस रहम दिली पर फ़क्र करेगी, मुसलमान कौम तेरे इस इसार की कद्र करेगी, और मेरे नाना पाक की उम्मत क़यामत तक तेरी इस नेकी पर शाबाश कहती रहेगी। अमर सैद, यजीद की हुकूमत व सल्तनत, इब्ने जियाद की ऐश व इसरत और तेरी शान व शौकत तुझे मुबारक। मगर देख, मेरा असगर मेरी झोली में कूफा के इस रेगिस्तान में चंद सांसों का मेहमान है। देख, इसकी सांस कैफियत बदल चुकी है, और देख इसका मन का ढल चुका है। इसलिए खुदा के वास्ते 2 घूंट पानी के अता कर दे। इतना कहकर खुदा के वास्ते 2 फातिमा के लाल ने अपने लखते जिगर को झोली से निकालकर अपने हाथों में उठा लिया, और फिर असगर के चेहरे से दामन हटाकर फरमाया, बेटा असगर उठो, और हक व सदाकत की आखिरी निशान बनकर, अजमत इस्लाम की आखिरी दलील बनकर, और दीन व शरीयत की आखिरी आयत बनकर, ए तमाम हुज्जत के लिए अपनी सूखी हुई ज़बान अमर सैद को दिखा दो।
ताकि हश्र के मैदान में दरबार खुदावंदी से मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। बच्चे को उठाकर हजरत इमाम हुसैन खामोश हो गए। इंतज़ार करने लगे कि इस 20,000 इंसानों के लश्कर में से किसी को मेरे असगर पर रहम आता है और वह दौड़कर पानी के चंद कतरे इसकी सूखी हुई जबान पर रखता है। मगर वह इंसान कहाँ थे जो उनको रहम आता। वह तो इंसानियत के तमाम सुनहरी उसूलों को छोड़कर वहशत व बर्बरियत के गड्ढे में गिर चुके थे और उनके सीनों में दिल नहीं पत्थर थे, बल्कि पत्थर भी नहीं, पत्थर की चट्टानें थी। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही और अमर सैद ने इस खामोशी को तोड़ा और कहा, हुसैन, तेरे दादे इस्माइल ने प्यास की शिद्दत से तंग आकर एड़ियाँ रगड़ी तो आबे जमजम का चश्मा जारी हो गया। हुसैन, तेरे नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उंगलियों से नहरें जारी हुई। हुसैन, अपने दादा से पानी मांग, अपने नाना से पानी मांग। अमर सैद की इस बेरहमाना गुफ्तगू से सैयद जोश में आ गया और फरमाया, अमर सैद, मैं भी अगर चाहूँ तो कोफा के इस रेगिस्तान में पानी की नहरें जारी हो सकती है और मैं भी अगर चाहूँ तो आसमान से पानी के परनाले बह सकते हैं। मगर जालिमों, आज खुदा देखना चाहता है तुम्हारे जब्र की इंतहा और हुसैन के सब्र की इंतहा। अमर सैद ने फिर पुकारा कि हुसैन का ये बच्चा भी जिंदा ना जाए। यह दिल खरास आवाज़ सुनकर हजरत इमाम हुसैन का कलेजा धक धक करने लगा और जल्दी जल्दी अपने बेटे को दामन में छुपाने की कोशिश कर ही रहे थे कि जालिम हूरमल का तीर शीरख्वार असगर के हलक से पार होकर हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। फिर उस पेकरे तस्लीम व रजा ने अपनी आंखों के सामने अपनी झोली में अपने मजलूम बच्चे को दम तोड़ते देखा और एक नन्ही सी जान को अपनी गोद में तड़पते देखा। करबला के नन्हे शहीद ने आंख खोली और अपनी सूखी हुई जबान अपने बाप को दिखाकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अली असगर नु लेके गोद अंधेरे कहिया, सान सिमर शरीर ताए पिया, मारे प्यास दे तड़फिदा में पानी दी इस मेरे सगीर ताई। अग्गू हुरमल ने मारिया तीर ऐसा आया, रहम ना किसे वे पीर ताई रांदा। खेमिया वल हुसैन मुड़िया नाले हलक थी, खींचदा तीर ताई। मजलूमे करबला ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाकर अपने हाथों से तीर खींचा। खून का फव्वारा बह निकला। मेरे आका हुसैन ने खून का चुल्लू भर लिया। आसमान की तरफ उछालना चाहा तो आवाज़ आई, हुसैन, खुदा के लिए इस बेगुनाह का खून ऊपर ना उछालना, वरना कयामत तक आसमान से पानी नहीं बरसेगा। फिर ज़मीन पर गिराना चाहा तो ज़मीन पुकार उठी, हुसैन, मुस्तफ़ा के वास्ते इस बेकसूर का लहू मुझ पर ना गिराना, वरना कयामत तक ज़मीन से सब्जी पैदा नहीं होगी। और फिर मुजस्समाए सब्र व शुक्र ने अपने बेटे के खून को यह कहते हुए अपने चेहरे पर मल लिया कि इनकार आसमां को है, राजी जमी नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन की इमामत पर एतराज़ करने वालों, ज़रा देखो और गौर से देखो, चश्मे जाहिर से नहीं चश्मे बातिन से देखो कि यह किसका लख्ते जिगर था जो कुर्बान हो गया। यह किस खानदान का चश्म व चिराग था जो बुझ गया। ये किस बाग का फूल था जो टूट गया। ये किस चमन का गुंचा था जो बिन खिले मुरझा गया। ये किसकी झोली में तड़फा, इसने किसकी गोद में दम तोड़ा और इसने किसके दामन को अपने खून से सुर्ख किया। इसे किस जुर्म की सज़ा मिली, इसका कसूर क्या था। तुम्हारी नज़र में अगर यजीद की हुकूमत का बागी था तो हुसैन, अगर मुजरिम था तो हुसैन, मगर इस नन्हे से बच्चे का तो
कोई कसूर नहीं था, और यह तो यजीद की हुकूमत का बागी नहीं था, यह तो अभी किसी का बगावत व इताअत को नहीं जानता था। तो फिर मुझे बताओ कि इस सीरखवार बच्चे को 3 दिन से प्यासा रखने के बाद बाप की झोली में तीर मारकर हलाल कर देना, कि यह इस बात का सबूत नहीं है कि झगड़ा बगावत का नहीं था, बल्कि बनी उमैया की अहले बैत के साथ दुश्मनी का था, और वह किसी हीले बहाने से आले मुस्तफ़ा का नाम व निशान तक मिटा देना चाहते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करते वक्त अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि मैं अपनी आँखों से अपने बेटे को तड़पता ना देखे, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को यह इनाम मिल ही गया कि इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, कि ए मेरे प्यारे खलील, इससे पहले तुम सिर्फ नबी ही थे, लेकिन आज के बाद तुम नस्ले इंसानी के इमाम भी हो। तो वह एक मुकद्दस इंसान जो अपने बेटे को कुर्बान करते वक्त अपनी आँखों पर पट्टी बांध ले, वह तो नस्ले इंसानी का इमाम बन जाए, मगर इस पेकरे सब्र व शुक्र और मुजस्समाए तस्लीम व रजा की इमामत पर शक करते हो, जिसने मैदान करबला के हक व बातिल के मारके में अपनी आँखों के सामने सारा कुंबा जिबा करवाया, जिसने ओन व मोहम्मद की लाशों को तड़पते हुए देखा, जिसने कासिम व असवास के बाजू कलम होते देखे, जिसने अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते देखे, और जिसने अपने मासूम असगर को अपनी झोली में अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। बीबी सहर बानो और सैयदा ज़ैनब खेमे के पर्दे से देख रही थी कि इमाम हुसैन के इस सवाल पर अमर सैद क्या जवाब देता है। वह इस उम्मीद में थी कि अमर सैद या उसके 20,000 लश्कर में से जरूर किसी के दिल में मजलूम असगर की बेकसी पर रहम आ जाएगा, और जरूर कोई ना कोई इस नन्हे से बच्चे को पानी के 2 कतरे दे देगा, और हजरत हुसैन हंसते हुए खेमे में वापस आएंगे। मगर उन पाक दामिनी बीबियों की यह उम्मीद भी फौरन टूट गई, जबकि नूहे निगाहे अली ने असगर की लाश बीबी सहर बानो की गोद में रख दी, और बहन ज़ैनब को फरमाया कि तुम्हारा असगर भी आबे कौसर से सैराब हो गया। सहर बानो चिल्ला उठी, हाय क्या हो गया मेरे लाल को, और सैयदा ज़ैनब चक्कर खाकर गिर पड़ी। सहर बानो अपने बच्चे की लाश से लिपट गई और कहा कि हाय मेरी उम्र भर की कमाई करबला के मैदान में लुट गई, हाय मेरी गोद खाली हो गई, मुझे इल्म ना था वरना मैं ना भेजती, या अल्लाह अब मैं वे औलाद हो गई हूँ। बेटा असगर, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह खाली झूला कौन झुलाएगा? हाय बेटा, इस झूले में किसको सुलाऊंगी? यह झूला किसको झुलाऊंगी? अच्छा बेटा जाओ, मेरी गोद को छोड़कर दादी फातिमा की गोद में जाओ। हुसैन के दामन से निकलकर नाना मुस्तफ़ा के दामन में जाओ। सैयदा ज़ैनब को होश आया तो लाश को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे असगर, मैं तुम्हें भतीजा नहीं अपना बेटा समझती थी। ओन व मोहम्मद से बढ़कर तुमसे प्यार करती थी। हाय अफसोस है कि तुम भूखे प्यासे इस दुनिया से गए। तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछा कि असगर कहाँ है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? और फिर दोनों ने असगर की लाश को इमाम पाक के हवाले कर दिया। राकिबे दोसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की नन्ही सी लाश को अपने हाथों में उठाया
اور اسی خون آلود دامن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے۔ خیموں میں ایک قیامت برسا ہو گئی۔ فاطمہ کے لال نے چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے لال کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور عرض کیا، یا مولا، قبر چھوٹی جے قد کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دتا لے لو مال کا کچھ نہیں ہو رکھیا میں دامن جھاڑ کے حسنین دکھا دتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔